अनिमेश जी। यस, नमस्ते जी। सर यहाँ से नमस्ते। मैं शुभकामना शुरू करें। मैं क्षमा चारों लेट हो गया ये कार्यक्रम से। शुरू करें। ठीक है सर। Good evening, sir. Thank you very much for joining with us, sir. I seek your kind permission to start today's proceedings, sir. Let me first extend greetings to all of you on behalf of NIT Rourkela for joining with us either through online or offline mode to witness such a memorable moment. Honorable Union Cabinet Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Honorable Shri Madan Mohan ji, Additional Director General, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India, for joining virtually with us and always motivating and supporting us in all of our endeavors. Joining from NIT Rourkela, we have distinguished dignitaries sitting on the dais, including our Director, Professor Animesh Biswas, Professor S.K. Patel, Dean Academics, Professor P.K. Das, Registrar of our Institute, Professor Pradeep Sarkar, PIC, Civil Construction, Professor Sushmita Das, Dean Faculty Welfare, Professor Snehashish Chakravarti, Dean Student Welfare, Professor Abanti Sahu, Dean Alumni Relations, Professor Ritvik Sarkar, Dean SRIC, and Professor Nihar Ranjan Mishra, our institute's representative in Board of Governors. Apart from that, other members of NIT Rourkela family are also joining with us in offline and online mode, including all the members of BOG, associate deans, heads of different departments, centers, units, and offices, including our faculty colleagues, staff members, students, alumni, well-wishers, and guests to witness this proud moment and share our happiness. Good evening to all of you. This is Dr. Rohan Dhiman, working as Associate Professor in Department of Life Science, and I'll be your host for today's memorable moment, and which is inauguration of our Golden Jubilee building. In a long history of almost 6 decades, our institute has witnessed a lot of historic events, but inauguration of this building by itself is one of the memorable moments, because one of the tallest building of this town, which is located in NIT Rourkela campus, is being inaugurated by great visionary and intellectual par excellence, writer, poet, educationist, with multifaceted dimensions, none other than our Honorable Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji. Now to proceed further with the program, I request all the dignitaries on the dais to light the lamp so that the Almighty bestow all of us with His blessings. Sir, please.
वर्ष हो गई इसको। नहीं, ये स्थापना हुई है। सर 1961 में 59 में सर फाउंडेशन हुआ था। Now all the dignitaries can take up their seats. Thanks to all the dignitaries for participating in the invocation ceremony. And now I request Professor Pradeep Sarkar, Professor in charge Civil Construction, to introduce our dynamic and extremely hardworking Director, sir. Professor Sarkar, please. Honorable Education Minister, Government of India, Sri Ramesh Pokhriyal ji, ADG, Ministry of Education, Sri Madan Mohan ji, respected dignitaries on the dais, my colleagues, alumni and students of NIT Rourkela, and all others who have joined us today online, very good evening to all of you. On behalf of the construction unit NIT Rourkela, I welcome you all to the inaugural ceremony of our Golden Jubilee building. This is a very special moment for us as we are actively involved with the construction of this building for many years, past few years. We are extremely happy that our Honorable Education Minister, Sri Ramesh Pokhriyal ji, has joined us today. Thank you very much, sir. Now, I have a very pleasant duty of introducing our Director, Professor Animesh Biswas, who has played a key role for the all-round development of NIT Rourkela during the last 4 years. He had served IIT Kanpur for over 20 years before joining NIT Rourkela as Director. He is well known for his work in the field of electromagnetic and microwave technique. Professor Biswas has received the most coveted Ramlal Vada Award this year from the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers for his outstanding original contribution in this field. Besides these accolades, he is an excellent leader. Some of his remarkable contributions to this institute are restructuring of academic curriculum to bring better learning experiences and prepare our students for unforeseen challenges, starting off executive PhD and part-time master's program to provide working professionals with a platform for higher studies and to strengthen institute-industry interaction. Fast-paced and minor degree programs are other significant contributions of Professor Biswas in our academic curriculum. Institute Counseling Service of NIT Rourkela is another novel initiative by Professor Biswas to promote well-being among the students. Professor Biswas has instituted Best Teacher Awards for existing teachers, Lifetime Achievement Award for the superannuated teachers, and the Best Employee Award for the non-teaching employees to enhance the quality of teaching and improve the overall academic environment of NIT Rourkela. Under his visionary leadership, a world-class indoor stadium is coming up in our campus to strengthen the sports fraternity of NIT Rourkela. And the list goes on. My sincere thanks to Professor Biswas for taking NIT Rourkela to a greater height. I now invite Professor Animesh Biswas, the Director of NIT Rourkela, to enlighten us with his words. Please, sir. Thank you. Thank you, Professor Pradeep Sarkar. A very good evenings to all present here. Honorable Chief Guest of today's function, Sri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Education Minister, Government of India, Sri Madan Mohan, Additional Director General of Ministry of Education, Member BOG, faculty colleagues, staffs of this institute, distinguished guests,
nominee of electronic and print media, alumni, students, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure in welcoming you all to the most awaited inauguration ceremony of Golden Jubilee buildings of NIT Rourkela. On behalf of NIT Rourkela community, I thank our Honorable Education Minister, Sri Ramesh Pokhriyal ji, for joining with us on this auspicious occasion. Before I present the highlights of our activities and achievements, let me have the pleasure of introducing our distinguished chief guest, Sri Ramesh Pokhriyal ji. Sir, you are recognized in the country and abroad as writer, poet, sensitive thinker on Himalayas and Ganges. Your immense contribution to the Ganga cleanness, especially by leading Spurs Ganga campaign, has encouraged active public participations for this cause. Sir, your vast and varied social work, your outstanding contribution for nation building through your dedicated service and commitment are quite remarkable. NIT Rourkela fraternity today warmly welcome you, sir, and look forward to have your kind advice, direction, and blessing for all its future endeavor. Sir, ladies and gentlemen, at NIT Rourkela, our mission is to advance and spread knowledge in the area of science and technology, leading to creation of wealth and welfare of humanity. Now, let me present a brief report on our recent achievements and key activities that has contributed to improve the visibility and ranking of our institute in national as well as international level. Respected sir, NIT Rourkela, migrating from Regional Engineering College in the state of Odisha, has witnessed umpteen transitions spread across 647 acres and surrounded by hills. NIT Rourkela is amongst the greenest campus in our country. The institute spread over 20 departments and 11 multidisciplinary centers, the highest amongst all NITs. With existing faculty strength of about 365, student strength of about 6,500, and huge alumni network, we are contributing our best towards the holistic education system in our country. Our institute has become a preferred destination for international students from both SAARC and non-SAARC countries through exchange programs administered by DASA, ICCR, MEA, and Study in India programs. Honorable Sir, it is my pleasure to share that NIT Rourkela has been ranked as the 16th best engineering institute in India this year in NIRF ranking by MHRD. Apart from this, NIT Rourkela is adjudged as the highest ranking NIT as per Time, Higher Education and QS ranking. Sir, NIT Rourkela is known nationally and internationally for its excellence in research and development. I am glad to inform that NIT Rourkela's research visibility is quite appreciable with respect to scholarly output, that is 9,661 publications with 92 H-index as per Scopus database and 4,689 publications with 77 H-index as per Web of Science database. NIT Rourkela is the only NIT that has awarded approximately 400 PhD degrees in last 3 years. Over 6,000 journals, papers are published by our students and faculty members in the previous 3 years. Our faculty members have received more than 250 sponsored and consultancy projects
including high-valued imprint project and collaborative international project during last 3 years. Our students and faculty members have published a total of 63 patents during previous 3 years, out of which 6 are granted till date. We also have started taking initiative, undertaking advanced research in plant science through organic farming and development of greenhouse, which has been well appreciated amongst our peers. Technology and business incubation has been globally recognized as an important tool for economic developments and job creation. Foundation for Technology and Business Incubation, FTBI, supported by DST Government of India, is an endeavor of ours for inculcating the enthusiasms among students, alumni, and others to tap innovations and technologies for enterprise creation. Currently, FTBI houses 34 incubated startups, 8 patents, 28 plus pre-incubation team with 150 plus job generators to date. It is being supported by the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board, Department of Science and Technology, Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, Department of Planning and Convergence, Government of Odisha, GAIL, Ministry of Electronics and IT, and NITRA to promote the spirit of entrepreneurship. Our FTBI is also a recognized incubator under Startup India and Startup Odisha. Sir, our training and placement center has been untiringly coordinating with the several organizations to provide quality placement to our graduates, postgraduates, and doctorate with both inside and outside the country. Over 75% of our undergraduate and postgraduate students have been placed through campus placement, whereas 10% of them have opted for higher studies in reputed institutes in India and abroad. Ladies and gentlemen, the mental and psychological health and overall developments of students remain central to the making of vibrant campus. I am happy to proclaim here that 3 years ago, we had initiated the Student Counseling Service to address our students' emotional, academic, and financial issues. Its need is so elaborate, it has become Institute Counseling Service now, and its services has been extended to all faculties, staff, and students. Honorable Sir, it is an opportunity to declare here that NIT Rourkela is supported with 365 faculties, 27 officers, along with 300 dedicated non-teaching staff, and offers a good environment to learn and grow. We have been successful in recruiting faculties from special categories by recruiting 20 faculties through special drive conducted in recent past. Sir, let me brief you about our existing infrastructures. Institute has about 5.5 lakh square meter of built-up area on our campus for staff and students, academic activity, and residence. In the recent past, we have added a 1,000-seater student hostel, a married student hostel comprising 150 flats, mechanical science building, and our second lecture hall complex. The major ongoing infrastructure projects in pipelines are a world-class sports complex and our extension campus at Bhubaneswar, funded through HEPA assistance. Sir, now let me brief about the Golden Jubilee Building. The Golden Jubilee Building was conceptualized in 2010 to commemorate the completion of 50 golden years of Premier Institute by previous director, Professor Sunil Kumar Sarangi. This highly impressive building is built
with financial support from Ministry of Human Resource and Development, Government of India, and work is executed by Sapurji and Palonji from 2013. This building is designed as a frame structure with a setback principle by Inform Architect, Bangalore. This building's tower portions has 14 floors, while the setback portion has 7 floors, excluding a lower ground floor. Additionally, this building will facilitate a world-class conference center at the rear side of the main building. Altogether, the building has approximately 36,000 square meters of build-up area. This tall building with 72-meter height is amongst the tallest educational building in our country for record. Needless to say, these impressive Golden Jubilee buildings will stand out as a work of architectural flair, perfectly capturing the spirit of excellence and dedications that has been central to the philosophy of this institute. This building is planned to accommodate all the offices of the institute administration and Biju Pattanayak Central Library. The buildings will also cater to some of the needs of certain departments in terms of classroom. Let me share that a telescope will be installed in an observatory to be located at the top of the buildings, and there will be provision for researchers from physics and astronomy and earth and atmospheric science to take observations and carry out research. Ladies and gentlemen, presenting glimpse of our recent activity before the August gathering, we feel confident about our bright future of becoming world-class institute. Well, we have significant challenge before us and so also great opportunities ahead. We are sure that with the active supports and blessing of our beloved Sri Ramesh Pokhriyalji, we can meet the milestone and achieve our well-set goals. Before ending my speech, I want to put my sincere appeal here in these great occasions. Let us pray that our respectable Education Minister guide us in the path for leading this institute to an international level and support us to advance in holistic manner. NIT Rourkela also heartily welcome the new Education Policy 2020 and technology-enabled learning plans of Ministry of Education, which will certainly bring a significant quality of improvements of higher education in many aspects. We, the NITR community, take a pledge to be committed to our duty and be trustworthy. I again offer my humble gratitude to Honorable Education Minister Sri Ramesh Pokhriyalji for giving us this golden opportunity to showcase our achievements and growth over past few years. Also, I express my thanks to the audience present here and attending in virtual mode. Thank you all. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your kind and encouraging words. We are all grateful to you for your unrelenting efforts to uplift brand NIT Rourkela by your sincerity, dedication, down-to-earth approach, and constant encouragement. We are really very lucky to have you as our director and hope this particular effort will continue for a long time. Due to this pandemic situation, we could not invite many of our well-wishers for today's event. But all those particular handful of well-wishers out of many, gracious enough to send their thoughts, which we will shortly share with you all in a video clip message. Messages have been sent by our great source of strength and mass leader of Sundargarh Lok Sabha constituency that Rourkela is also part of. Former Cabinet Minister of Tribal Affairs,
and Chairperson, Parliamentary Standing Committee on Defence, Shri Joel Oromji. Second message will be shared with you, will be from Shri N.R. Mohanty ji, who is ex-chairman, Hindustan Aeronautics Limited and distinguished alumni of our institute, who has also been awarded Padma Shri by Government of India. Third message is from Madam Soma Mandal ji, who is also our alumni and currently working as Director Commercials in Steel Authority of India. And the last message will be from our local friend, Mr. Deepak Chatraj ji, who is currently Chief Executive Officer in Rourkela Steel Plant. Video clip, please. We thank every one of you for the wonderful gesture and keeping us in your thoughts by providing all the necessary support whenever it is required. Now I take this opportunity to call upon popular personality of the campus, Professor S.K. Patel, who is currently Dean Academics also, to introduce chief guest of today's occasion, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji. Patel sir. Thank you, Professor Dhiman. Honorable Union Cabinet Minister Sri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, our Director Professor Animesh Biswas, Registrar Professor P.K. Das, Professor Sarkar, members of Board of Governors, Deans, heads of the departments, centers and units, my faculty colleagues, students, alumni, those who are physically present and online witnessing these functions. Very good evening to all of you. It's really a great day for all of us. We have been waiting for this momentous occasion. I feel myself fortunate enough to get the opportunity to introduce our chief guest, Honorable Union Minister of Education, Sri Ramesh Pokhriyal Nishank ji. He was born in 1959 in a remote village, Pinani of Pauri district of Uttarakhand. His early childhood lagged in many aspects due to his financially humble background. Despite this,
the brilliance of his intellect stood out like a lotus flower out of mud. He initially served society as a teacher and later as a journalist. His political journey started in 1987 as the central spokesperson of the Uttar Pradesh, now Uttarakhand Sangharsh Samiti. In 1991, he was elected as an MLA from the Karnaprayag Assembly. In 1996, for the first time, he became a cabinet minister in Uttar Pradesh. With the establishment of the Uttarakhand state, he became the finance minister and was handed over as many as 12 important departments. In the year 2007, he became the cabinet minister, and in 2009, the chief minister of the state. He was elected as a member of the 16th Lok Sabha of our country from Haridwar constituencies in the year 2014 with an overwhelming majority. Re-elected from this Lok Sabha in the year 2019, he has now taken up the important responsibility of the Ministry of Education, Government of India. He is recognized in the country and abroad as a writer, literature, poet, sensitive thinker on the Himalayas and the Ganges. He has kept sensitive issues of Himalayas and Ganges in the parliament. His contribution to Ganga cleanliness, especially by the leading Sparsh Ganga campaign, has encouraged active public participation for the cause. About 15 people have either completed or doing research on his literature. He has written more than 75 books. His books have been translated into every Indian and many foreign languages. More than 15 countries had honored him. Our country is constantly benefiting from such an honorable education minister. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for the kind introduction. And now I request all the dignitaries on the dais to assemble near the inauguration plate so that our honorable chief guest virtually inaugurate this magnificent building. Sir, please. मैडम आप इधर आइए। Thank you very much, sir. I request all the dignitaries to please stay back to your seats. Sir, as part of NIT Rourkela family, we extend our gratitude for inaugurating Golden Jubilee building, but we are also eagerly awaiting that you will definitely visit our campus in near future and we will get to interact with you physically as early as possible. This inauguration by our chief guest was made possible through in-house collaboration between Mr. Manoj Kumar Patnaik from Computer Center,
Mr. Bikram Kumar Sahu from Computer Center, Mr. Saurav Ranjan Sarangi from Automation Cell, and Mr. Anup Prasad Sahu from Central Workshop, which was based on Internet of Things. I was informed that URL was provided to the Honorable Chief Guest, and by pressing the inauguration button, it was accomplished, which is indeed a true inauguration in a sense, but done remotely. I now request Honorable Chief Guest, Sir, to deliver keynote address. Sir, please. स्वर्ण जयंती भवन के उद्घाटन के अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित शासन से जुड़े हमारे डीजी श्री मदन मोहन जी, एनआईटी राउरकेला के यशस्वी निदेशक प्रोफेसर अनिमेश विश्वास जी, कुल सचिव प्रोफेसर प्रदीप कुमार दास जी, डीन प्रोफेसर सरोज कुमार पटेल जी, डीन प्रोफेसर सुस्मिता दास जी, डीन प्रोफेसर स्नेहाशीष चक्रवर्ती जी, डीन प्रोफेसर अमती साहू जी, डीन प्रोफेसर ऋतिक सरकार जी, और बीओजी के सदस्य प्रोफेसर निहार रंजन जी। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े जिनको अभी श्री जुएल ओराम जी जो बाहर से जुड़े हुए हैं, हमारे मित्र हैं और पूर्व मंत्री हैं, एमपी हैं, पद्म श्री एनआर मोहंती जो यहीं के पूर्व छात्र हैं, और सुश्री सोमा मंडल जो निदेशक हैं वाणिज्यिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, श्री दीपक चट्टराज जो सीईओ हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र के, सभी फैकल्टीगण, सभी इस परिवार के सभी सदस्यगण, कर्मी, प्रिय छात्र और छात्राओं, मुझे लगता है कि आज हम लोग ऐसे अवसर पर हैं जब हम खुशी के वातावरण में हैं, और स्वर्ण जयंती, हम लोगों ने स्वर्ण जयंती भवन लिखा है, बनाया है। मन में आपके विचार आया होगा कि ये भवन बनना है, लेकिन ये भवन स्वर्ण जयंती बनना है। तो एक तो जो स्वर्ण है, स्वर्ण जयंती अपने में ही ऐसा भाव पैदा करता है जो कहीं ना कहीं श्रेष्ठता की ओर हमको लेकर के जाता है, और वो ये भी बताता है कि ये भवन पीछे इतने वर्षों की अनवरत यात्रा की यादों को संजो करके भविष्य की छलांग मारने के लिए बीज का हमारा नया आधार खड़ा हुआ है। इसलिए इस अवसर पर, इस भवन के उद्घाटन के अवसर पर मैं निदेशक को और इस पूरे परिवार को बहुत सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं समझता हूं कि क्योंकि जो स्वर्ण जयंती भवन है ये इसमें आपने एक ही छत के नीचे केंद्रीय पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, उत्कृष्टता केंद्र है, सीनेट हॉल है, प्रशासनिक कार्यालय, सभी एक छत के नीचे आपने वो स्वर्ण जयंती के अंदर समाहित कर दिया है। वो उसकी खूबसूरती है और स्वाभाविक ही है, जब एक साथ चीजें जुड़ती हैं तो नई रचना का निर्माण होता है, वो पैदा होती है, और वो ताकतें इकट्ठा एक साथ जुड़ती हैं, तो जब हम सोच भी नहीं सकते कुछ चीज़ ऐसी भी पैदा होती हैं और अच्छी पैदा होती हैं। शिक्षा मंत्रालय ने जो इस भवन के लिए पूरा सहयोग दिया है, मैं मंत्रालय के सभी अधिकारियों को भी इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो मुझे बताया गया कि इस भवन के ऊपर एक टेलीस्कोप की स्थापना होगी ताकि छात्र और अन्य संबंधी लोग पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञान और जलवायु संबंधी पर्यवेक्षण कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों बातें, पर्यावरण हमारे लिए बहुत चिंता का विषय हो, पृथ्वी तो उसको हमने माँ माना है, भूमि माता, भूमि पुत्रों पृथिव्या बोला है हमने,
तो ये जो पृथ्वी है, ये इसके में जो संरचना है, जो सृजना है, उसकी गोदी में हम सब लोग सब कुछ कर रहे हैं। और उस पृथ्वी और उसका वायुमंडलीय विज्ञान, क्योंकि सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। और दूसरी ओर पर्यावरण की जो आपने चर्चा की है, जलवायु संबंधी, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में NIT जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाओं को उच्च गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा को देने की बड़ी जिम्मेदारी है। और वैज्ञानिक शिक्षा के साथ वो उसको कैसे जोड़ सकते हैं और देश की आधारशिला बना करके विश्व के शिखर पर कैसे पहुंच सकते हैं, वो आपने रास्ता भी बनाना है और बनाए हुए कोई रास्ता है उसको छलांग के साथ उभारना भी है। नित नई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का मुकाबला करके उसको अपने जो छात्र है उसको एक योद्धा के रूप में विश्व के सामने हमको प्रस्तुत करना होता है, ताकि उस मैदान में वो पूरी ताकत के साथ अपने को साबित कर दे। किसी भी संस्था का यदि मूल्यांकन करते हैं तो उसका मूल्यांकन उसके छात्रों की प्रगति पर निर्भर करता है। उसको निकलने वाला छात्र कितने बड़े फलक पर निकला है, वो कहाँ पर है, देश को किन किन क्षेत्रों में वो नेतृत्व दे रहा है, विश्व के किस शिखर पर वो पहुंच रहा है। और वैसे मैंने इस संस्थान के पूर्व छात्रों को की एक सूची को देखा था और मैं पीछे के समय से इस संस्थान के अंदर तक जाकर के मैंने विश्लेषण करने की कोशिश की है। और पीछे 1 साल 1.25 साल में मैं सभी अपने मेरे IIT हैं, मेरे IIIT हैं, मेरे NIT हैं, ISR हैं, IIM हैं, मेरे केंद्रीय विश्वविद्यालय से तमाम राष्ट्रीय महत्व की 1,500 के लगभग ये जो संस्थाएं हैं, जब मैं इनके अंदर देखता हूँ, झांकता हूँ और उसका विश्लेषण करता हूँ तो मुझे भरोसा पैदा होता है कि वो भारत जो विश्व गुरु था, वो भारत जिस भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, वो भारत जो तकनीकी के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहा। पूरी दुनिया की लीडरशिप जिस भारत ने ली हो, वो तमाम समय की थपेड़ों ने, देश की गुलामी की जंजीरों ने जिस तरीके से हमको पछाड़ा, एक तरफ फेंका, हमारी उन जड़ों को हमसे विमुख किया, काटा, हमको कटवी पतंग की तरह बनाने की कोशिश की कि हम उड़ तो रहे हैं लेकिन हमारी जमीन हमारे पास नहीं थी। आज देश की आजादी के 70 वर्षों के बाद फिर हम खड़े हैं। फिर उस भारत, जो नया भारत, मेरे देश के प्रधानमंत्री अक्सर बोलते हैं मुझे एक नया भारत चाहिए। कैसा भारत चाहिए? जो स्वच्छ भारत हो, जो स्वस्थ भारत हो, जो सशक्त भारत हो, जो समृद्ध भारत हो, जो आत्मनिर्भर भारत हो, जो श्रेष्ठ भारत हो, एक भारत हो। और उस भारत की आधारशिला, उस आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत की आधारशिला ये इन्हीं संस्थानों से होकर के गुजरती है। और मुझे लगता है हमारे सामने चुनौती भी है, तो जब चुनौती का हम मुकाबला करते हैं तो अवसरों में तब्दील हो जाती है। इसलिए मैंने अपने छात्र छात्राओं, यदि आप मेरी बात को सुन रहे होंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे अच्छा अवसर मिल नहीं सकता। हमें क्षमता की कमी नहीं है, हमें प्रतिभा की कमी नहीं है, हमें विजन की कमी नहीं है। विजन को जमीन पर अवतरित करने का मादा भी हम में है और इसलिए ये अवसर है, पूरी दुनिया हमारी ओर न्या रही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे इन संस्थानों ने बहुत अच्छे लोग नहीं दिए हैं। ये जो पीछे के समय में एक होड़ मची विदेशों में जाने की, विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने की, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी संस्थाएं, ये शीर्ष की संस्थाएं हैं, ये विदेशों में जो पढ़ाई हो रही है कम हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, शोध और अनुसंधान की दिशा में थोड़ा सा हम पीछे थे, उस खाई को भी हम तेजी से पाटेंगे। और इसीलिए हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आए हैं जो देश की आजादी के 70 वर्षों में भारत केंद्रित होगी और ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के साथ, नवाचार के साथ पूरे जमीन पर खड़े होकर के विश्व के शिखर को चूमने की कोशिश करेगी। ये जो नई शिक्षा नीति जो आई है वो नेशनल भी होगी, उसमें राष्ट्रीयता कूट कूट करके भरी होगी। तो जहां नेशनल होगी वो इंटरनेशनल भी होगी और वो इफेक्टिव भी होगी
और वो इंटरैक्टिव भी होगी, वो इंक्लूसिव भी होगी। और जो हमारी नई शिक्षा नीति है, ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी होकर के आगे बढ़ेगी। मैं ये समझता हूं कि हमको कभी नहीं भूलना चाहिए मेरे छात्रों और मेरे जो गुरुजन वृंद हैं, क्योंकि इस देश ने यदि विश्व गुरु रहा है तो सामान्यतः किसी ने नहीं बोला कि इसको विश्व गुरु बोलिए। उसके ज्ञान विज्ञान अनुसंधान ने उसको स्थापित किया। और मैं तो इस धारणा का हूं कि भारत विश्व गुरु था, ये विश्व गुरु है और ये कल भी विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि हम में क्षमता की कमी नहीं है, विजन की कमी नहीं है। जब हम मिल करके इन सारी चीजों पे शोध अनुसंधान के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित हम पूरी दुनिया को लीडरशिप देंगे। और अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी हम दुनिया के 28 शीर्ष देशों के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। अभी भी मेरी इन संस्थानों से निकलने वाले जो छात्र हैं वो पूरे विश्व में लीडरशिप ले रहे हैं। यदि किसी बड़ी संस्था को देखा जाए, कंपनी को देखा जाए, तो चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, इनके सीईओ के आधार पर इन्हीं NIT IIT से निकलने वाला मेरा छात्र आज सीईओ बन करके सैकड़ों दुनिया की शीर्ष कंपनियों को मार्गदर्शन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमने अपनी प्रतिभाओं को छोड़ा, यहीं से पढ़ करके वो दुनिया के छा रहे हैं और जो दुनिया में छा रहे हैं। तो मुझे इस बात की चिंता है, और जिसको ये राउरकेला जैसे NIT और मेरे संस्थानों के लिए सामने ये चुनौती है कि आखिर क्यों जाए। 7.5 से लेकर के 8 लाख छात्र दुनिया में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे देश का 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ लाख रुपया, 1.5 करोड़ लाख रुपया पूरी दुनिया में चला जाता है। 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपया का चले जाना, प्रतिभा का भी चले जाना, पैसा का भी चले जाना, हमारे सामने चुनौती है। आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति आई। लेकिन मुझे भरोसा है हम अब स्टडी इन इंडिया के तहत पूरी देश के लोगों को बुला रहे हैं और लोग अभी होड़ मची है अब हिंदुस्तान में आने के लिए। अभी पीछे के समय स्टडी इन इंडिया के तहत 50,000 से भी अधिक नामांकन हुए जब विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और हमने स्टे इन इंडिया भी किया है। हमने कहा अपने छात्रों को आप यहाँ रुकिए, आप इन संस्थानों करें। मेरे राउरकेला जैसे NITs मैं अभी देख रहा था कि आप जो है जो NIRF रैंकिंग में 32वें स्थान पर हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के उसमें 16वें स्थान आपने अर्जित किया है। DSN यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अभी बता रहे थे, डायरेक्टर भी चर्चा कर रहे थे अनिमेश की आप उस रैंकिंग में भी एशिया में 225वें स्थान पर आप आई हैं और 2019 की रैंकिंग में 121वां स्थान आपका क्यूस रैंकिंग में है। और मुझे भरोसा है कि जब आप तेजी से आगे बढ़ेंगे तो उस खाई को हम पाट सकते हैं। अभी जो थोड़ा सा कमी है और कुछ तो ये रैंकिंग करने वाले लोग भी मनमानी करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो उनके मानक हैं उन मानकों के आधार पर वो जानबूझ करके मैं दादागिरी शब्द का तो प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मनमानी करते हैं। और मेरी बातचीत हुई है उनसे, मैंने उनको बताया, दोनों संस्थाओं को मैंने कहा है कि ये मनमाना नहीं चलेगा और अन्यथा हम अपनी रैंकिंग को शुरू करेंगे। हम लोगों ने अभी अपनी अटल रैंकिंग को शुरू किया है। हमारी अपनी रैंकिंग है, NAAC की रैंकिंग है, NIRF की रैंकिंग है और हम विश्व के लिए एक नया मानक तैयार करेंगे। लेकिन मुझे भरोसा है आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, रात दिन जुटे हुए हैं, खप रहे हैं, मुझे भरोसा है कि आप निश्चित इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। 21 अकादमिक डिपार्टमेंट है आपके जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मानविकी विज्ञान, स्थापत्य और प्रबंधन जैसे विषय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, करा रहे हैं, आप PhD करा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 6000 से भी अधिक छात्र को एक सूत्र में पिरोने में आप सफल हैं।
और आज राउरकेला में जाने में बच्चों की उत्सुकता होती है। वो भी जब मैं समीक्षा करता हूं कि बच्चा कहाँ चाहता है, एनआईटी है तो कहाँ जाना चाहता है, आईआईटी तो कहाँ जाना चाहता है और क्यों जाना चाहता है, फिर उस संस्था में है क्या ऐसा, उसकी कौन सी फैकल्टी है जिस फैकल्टी ने किसी विशेष क्षेत्र में ऐसा अपना प्रभुत्व स्थापित किया हो जहां पूरे देश और दुनिया का छात्र आना चाहता हो। मुझे लगता है कि उस दिशा में आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और अच्छा मुझे भरोसा है। अभी तक जो उद्योगों के और ये तो हमारे अकादमी के बीच जो गैप रहता था उसको भी आपने भरने की कोशिश की है। आपने तीर करके जो है जो केंद्र बनाए हैं वो भी मुझे अच्छा लगा है। और जो आपने ज्ञान, उद्योग और समाज के बीच एक ऐसा समुद्र गठित करने की कोशिश की है, अच्छा लगा मुझे। और तीर तो ज्ञान को व्यावहारिक उपयोग पाने की ये जो सहज रास्ता आपने दिया है, बताया है, संयोजित करने की कोशिश की है, बहुत अच्छा है, अद्भुत प्रयोग है आपका। और आप निश्चित उस दिशा में जो चिंता थी मेरी वो उसको आपने काफी कम किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि उद्योग एक तरफ है मेरा और ये जो संस्थाएं दूसरी तरफ हैं, जो उसको जरूरत है वो इधर नहीं है, जो इसको जरूरत है वो उधर नहीं है। अब जब दोनों मिलकर के ये जो तीर है, ये तट है, ये दोनों जब जुड़ेंगे, मिलेंगे तो ये कैसे ज्ञान के महासागर बन करके निकलेंगे जो औरों को भी दिशा देंगे, दर्शन देंगे, आधार देंगे। मेरा भरोसा है। इसीलिए पीछे के समय में जब मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना के महासंकट से गुजर रही थी और अपना देश भी अछूता नहीं था, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे नौजवानों, मेरे अध्यापकों, आप इस चुनौती का कैसे मुकाबला कर सकते हैं, मैं आपको आह्वान करता हूं। और मुझे खुशी है कि मेरे जो एनआईटी हैं, मेरे आईआईटीज हैं, जो मेरे आईसर हैं, मेरे आईएम हैं, सब लोगों ने पहले पंक्ति में एक योद्धा की तरह खड़े होकर के और उस वक्त पर शोध और अनुसंधान किया। और आपने भी, मैं देख रहा हूं कि उस अवसर पर आपने भी, आप पीछे नहीं रहे और आपने भी बहुत सारे अनुसंधानों को किया है और नई चीजों को प्रकट किया। मैं इसकी भी आपको बधाई देना चाहता हूं कि विषम स्थितियों में भी आप खड़े होकर के आपने अपने बच्चों को एक योद्धा की तरह आगे खड़ा किया और शोध और अनुसंधान किए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और इसलिए मैं सोचता हूं आपने स्टार्टअप में ये भी देख रहा था कि आपने बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो किए हैं और उद्योग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले आपके यहाँ व्यापक परीक्षण करने के लिए भी आ रहे हैं छात्र, अध्यापक, और इसका बहुत अच्छा विश्लेषण आप कर रहे हैं। और इन कामों के लिए आपने जो टेक्नोलॉजी का जो ये सेल बनाए है, टीआईसी, आपने जो टीआईसी बनाए हैं और आईआरसी, इन दोनों की भूमिका आपकी यहाँ बहुत सराहनीय है। मैं इसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये दोनों संस्थाएं आपकी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट मेक इन इंडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 21वीं सदी का भारत है और जो स्वर्णिम भारत है, अभी मैं देख रहा था आपका यहाँ पर ये स्वर्णिम भवन का उद्घाटन आपने किया है और मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो 21वीं सदी का वो भी स्वर्णिम भारत होना है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज जुड़ रही हैं। ये जो स्वर्णिम भारत की आधारशिला आज हम इस राउरकेला की धरती पर जो है 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला बन करके ये जो अब मेरा भवन है आज इसको साबित करना है, क्योंकि उन्होंने कहा 21वीं सदी का ऐसा स्वर्णिम भारत चाहिए जो स्वच्छ भारत हो, जो स्वस्थ भारत हो, जो सशक्त भारत हो, जो समृद्ध भारत हो। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 2024 में होना है और अभी आत्मनिर्भर भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो। और जो ये आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ भारत है वो ये स्वर्ण जयंती भवन से होकर के गुजरता है। मुझे भरोसा ये स्वर्ण जयंती भवन उस आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत की आधारशिला बनेगा और स्वर्णिम भारत की वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जिस तरीके से आप लोग जुटे हुए हैं मुझे खुशी होती है। मैं सभी अध्यापक गण के बारे में भी लगातार सोचता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ। सब संस्थानों के अंदर घुस करके उनकी सूचनाएं प्राप्त करता हूँ। कौन सा अध्यापक कहाँ पर क्या सोच रहा है। और आप किसी के भी प्रोजेक्ट से, किसी के भी बच्चे से पता चल सकता है कि वो संस्था क्या, वो जो विभाग है वो सोच क्या रहा है।
उसने पीछे के समय क्या कर रहा है, अब आगे उसके क्या कदम है, और किसी का भी पता चल सकता है। और मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आप नित नए, अब आपके जो अध्यापक गण में है, डायरेक्टर साहब को मैं कहना चाहता हूं, मेरे अध्यापक एक योद्धा की तरह हैं, इनको आप प्रवेश दीजिए, इनको प्रवेश दीजिए। छात्रों को कह दीजिए कि केवल वो पैकेज की ओर न भागें, भूल जाएं वो पैकेज को, बल्कि इस बात को ध्यान रखें कि मेरे देश में अब मुझे वो काम करना है जो सारे विश्व पे मेरे देश को शीर्ष पर पहुंचा सके। ये जुनून होना है अब मेरे अध्यापक गण का भी, मेरे छात्रों का भी। अब मुझे भरोसा है कि जब हम प्रवेश देंगे ये बनेगा, ये प्रवेश बनेगा, हर हालत में बनेगा। और वो क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ है और आप में लीडरशिप की ताकत है। ये लीडरशिप, अध्यापक तो वो ताकत है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और फिर ये यंग इंडिया, आगे 25 सालों तक ये भारत ने यंग भारत रहना है। ये इस युवा से क्या नहीं कराया जा सकता है, इसमें वो जुनून पैदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे बार बार, मैं भी एक अध्यापक से लेकर, एक शिक्षक से लेकर के इधर शिक्षा मंत्री तक की यात्रा में मैं कह सकता हूं भरोसे के साथ कि अध्यापक वो ताकत है जो कुछ भी कर सकता है। यहां तो चंद्रगुप्त हर कदम पर बिखरे पड़े हैं, चाणक्य की जरूरत है और उसकी भूमिका आप बखूबी निभाएंगे। मैं अध्यापकों को इसकी शुभकामना देना चाहता हूं और आगे के लिए भी शुभकामना देना चाहता हूं। अब ये मेरा जो मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, ये आखिर यही तो रास्ता है हमारा है। आज आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत 130 करोड़ लोगों का है। 130 करोड़ लोगों का क्या नहीं कर सकते हैं हम, सब कुछ कर सकते हैं। और इसलिए ताकत के साथ पहले आत्मविश्वास से तो स्वयं तो खड़े हो जाएं, फिर अपने छात्रों को खड़ा करें, फिर उनको अभियान में जुटाएं। पूरी दुनिया में छाना है हमको तो। और इसलिए मुझे भरोसा है, एक माहौल बना है इस बीच देश का। मैं जब नई शिक्षा नीति को लेकर के आ रहा था, तमाम प्रकार की बातें हो रही थी, साहब जो है शिक्षा नीति पर हंगामा मचेगा। मैंने पूछा किस चीज पर हंगामा मचेगा, आखिर क्यों, वो कौन लोग हैं जो हंगामा मचाना चाहते हैं? क्योंकि मैं तो राजनीति से हमेशा शिक्षा को दूर रखने की अपील करता हूं सबसे। आपको राजनीति में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मेरे शिक्षकों के साथ, मेरी शिक्षा के साथ, मेरे छात्रों के साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो देश का भविष्य है, ये तो देश की आधारशिला है, इसको प्रवेश देना चाहिए। और इसलिए मैंने बहुत अपील की लोगों से। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरी अपील को लोगों ने सुना, मेरे अपील को लोगों ने महसूस किया, मेरी अपील को। और इसलिए पीछे के समय में जब अब नई शिक्षा नीति को हम लेके आए, शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा विमर्श था, सबसे बड़ा विमर्श था। ये देश 1000 से अधिक जिसमें विश्वविद्यालय हों, 45,000 से अधिक जिसमें डिग्री कॉलेज हों, जिसमें 15 लाख से अधिक स्कूल हों, जिसमें 1 करोड़ 9 लाख से अधिक अध्यापक हों, जिसमें कुल अमेरिका की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे भी ज्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएं हों। यह है मेरा देश भारत, इसकी अपनी गरिमा है। और इसलिए उस देश में जो विश्वगुरु रहा हो, ऐसा नहीं कि अचानक हम पैदा हुए अब भटक रहे होंगे कि हमारी शिक्षा क्या होगी, हमारी दिशा क्या होगी, हमारा विजन क्या होगा और कौन उस विजन को लेकर के जाएगा। अचानक नहीं, हमारे पास तो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश दुनिया का ये इसी धरती पर सुश्रुत भी पैदा हुआ जो शल्य चिकित्सा का जनक है। इसी धरती पर पैदा हुआ चरक जो आयुर्वेदा, आयुर्वेद को कहने वाले पूरी दुनिया में है। इसी धरती पर पैदा हुआ है पतंजलि जो योग सूत्र में आज पूरी दुनिया के 199 देश अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हिंदुस्तान के पीछे आकर के मेरे देश के प्रधानमंत्री की एक छोटी सी अपील पर एकत्रित होकर के आज पूरी दुनिया में 21 जून को विश्व का योग दिवस मनाते हैं। इसी धरती पर वो महान वैज्ञानिक है भास्कराचार्य, आज दुनिया जानती है भास्कराचार्य ने क्या क्या नहीं किया। इसी धरती पर रसायन शास्त्री मेरा नागार्जुन भी पैदा हुआ है। इसी धरती पर तो गणितज्ञ, चाहे वो भास्कराचार्य हो चाहे आर्यभट्ट हो, आर्यभट्ट गणितज्ञ कौन नहीं जानता, भाषाविद पाणिनि को कौन नहीं जानता, सब कुछ है। मैं उस पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जब हम पीछे की बात करते हैं
जिन लोगों ने हमारे देश में इतने वर्षों तक हमको मानसिक गुलामी के थप्पेड़ों में जकड़ा रहा, वो इसको हास्यास्पद स्थिति में लेते हैं जब हम अपनी पुरानी चीजों को बोलते हैं, क्योंकि उसके बारे में जानकारी है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। इसलिए जरूरत है आज अपनी जमीन पर खड़े होकर के, अपनी जमीन पर खड़े होकर के जरूरत है उस विशालता को पढ़ने की। जो लोग, जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समाज, जो राष्ट्र अपनी जड़ों से विमुख होता है, वो कटी हुई पतंग की तरह होता है जो आसमान में तो उड़ रहा है, लेकिन उस पतंग को यही पता नहीं कि वो किस गर्त में गिरेगी, कोई मालूम नहीं है। जैसे ठूंठ सा खड़ा होता है कोई जो लंबा तो हो रहा है, लेकिन उसमें न छांव देने की ताकत है और न उसमें फल फूल देने की ताकत है। एक छोटा सा हवा का झोंका आता है तो उखड़ करके चला जाता है, लेकिन मेरा छोटी सी डाल भी जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, वो फल भी देता है, फूल भी देता है, पत्तियां भी देता है, छांव भी देता है, आशा से भरा रहता है। तमाम थप्पेड़े आने के बाद तमाम तूफान और आंधी भी जल्दी से उसको उखाड़ नहीं सकती हैं। हमको ऐसी जड़ों को गहरा करना है। इसलिए मेरी जो ये नई शिक्षा नीति है, ये भारत केंद्रित होगी, ये विश्व के फलक पर तो जाएगी। हम ज्ञान में भी, विज्ञान में भी, अनुसंधान में भी, नवाचार में भी हम छलांग मारेंगे, लेकिन हाँ, हम अपनी जड़ों पर खड़े होंगे। पीछे के समय में यूनेस्को की डीजी मुझे मिलने के लिए आई थी। जब मैं पेरिस में यूनेस्को के एक सम्मेलन में गया था, मैंने कुछ बातें भारत की रखी थी, लोगों को बहुत अच्छी लगी, पूरी दुनिया के लोगों को अच्छी लगी। उन्होंने यहाँ आकर के जब मुझसे कहा, उन्होंने एक सवाल किया, डॉक्टर निशंक, अनुशासनहीनता हो रही है, लोगों में चिड़चिड़ापन आ गया, अहिंसा हो रही है, आदमी केवल भौतिक सुविधाओं की ओर जा रहा है, क्या होगा, क्या लगता है? बहुत सारी चिंताएं उन्होंने प्रकट की। तो मैंने उनको कहा, ये एक ही सूत्र है और कुछ सूत्र नहीं है। ये सूत्र है और वो है जो जीवन मूल्यों की शिक्षा। हमने आदमी को आदमी कब बनाया? हमने मनुष्य कब बनाया? हमने तो उसको मशीन बनाया। हमने तो केवल ये बताया कि तुझे इतना कमाना है, तुझे तो इधर जाना है। इसके अलावा मानवीय और जो संवेदनाएं हैं उसको कहाँ हमने सृजित किया उसके अंदर। और इसलिए ये जो भारत की शिक्षा है वो जीवन मूल्यों के आधार पर खड़ी होगी। हम कभी नहीं भूलते कि हमारा विचार पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनाने का, जिसने पूरी विश्व को अपना परिवार माना है। अयम निजा परोवती गणना लघु चेतसा मुदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को मैंने अपना परिवार माना है। और जो दुनिया के देश ये सारे वर्ल्ड को मार्केट मानते हैं, उनकी दिमाग में केवल मार्केट चलता है, केवल पैकेज चलता है, केवल उनकी दृष्टि में दुनिया एक मार्केट है, बाजार है। हमारी दृष्टि में दुनिया बाजार नहीं है, परिवार है। बाजार में व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, और परिवार में प्यार होता है। यहाँ तो परिवार में मिलजुल करके, अभी जब ये खुशी हो रही है तो सब मिलकर के खुशियों को बांटते हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और जब परिवार में कोई एक दुखी होता है तो उस दुख को भी बांटते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि अरे वो हो रहा होगा, मुझे क्या लेना देना ना। परिवार में एक भी दुखी होता है तो सब मिल करके उसका सहयोग करते हैं। दुख बांटने से घटता है, खत्म होता है, और सुख बांटने से बढ़ता है। ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारा आचार है, ये हमारा व्यवहार है, ये हमारा संस्कार है। इसको कैसे छोड़ सकते हम? और इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सुबह उठते हैं तो अपने बारे में नहीं बोलते कि मैं सब कुछ ठीक हो जाता, मैं चाहे दुनिया कहीं जाए न जाए, कोई सुखी रहे दुखी रहे, मैं बहुत अच्छा हो जाऊं। नहीं, हमने हमेशा उठते ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नहीं, धरती पर जब तक एक इंसान भी दुखी होगा, मैं सुख का एहसास कैसे कर सकता हूं? ये हमारा विचार। ये मेरे छात्रों, ये छोटा विचार नहीं है, ये आपको दुनिया में लीडरशिप देता है। और इसलिए इस विचार, ये हमारी रगों का विचार है, हमारी रगों में बहता खून है, ये हमारा संस्कार है, यही हमारी शिक्षा का मूल आधार भी है। और बाकी तो जब आदमी खड़ा होता है तो हर क्षेत्र में जो उसके सामने चुनौती है, ज्ञान के, विज्ञान के, अनुसंधान के, नवाचार के, उसको लेकर के आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसमें कब कह रहे हैं हम कि नहीं बढ़ेगा? अभी जब हम इस शिक्षा को, नई शिक्षा को मातृभाषा के आधार पर लेकर के आए, काफी कुछ लोगों को बहुत खुशी हुई। देश का हर कोना बहुत खुश हुआ कि अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि मातृभाषा में मेरा बच्चा बोलेगा। क्योंकि लोगों को पता है जो अपनी भाषा में उसकी अभिव्यक्ति होगी अंदर की, वो दूसरी थोपी हुई भाषा में नहीं बोल सकता। वो अंदर से जो सृजन होता है
वो अपनी भाषा में, जो बोलती भाषा में, उसकी अपनी क्षेत्रीय भाषा, उसकी जो मातृभाषा है, जब हम इसको लाए तो कुछ लोग जो उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं संदर्भ बस उनको बताना चाहता हूं। अरे डॉक्टर निशंक जी, आप एक और तो विश्व के शिखर पर जाने की बात करते हैं, आप ग्लोबल की बात करते हैं, ये दुनिया ये हो रही है, और दूसरी ओर आप मातृभाषा की बात कर रहे हैं, आप अंग्रेजी मीडियम की बात से हटा करके ये कर रहे हैं। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, हम किसी भाषा का विरोधी नहीं, हम किसी प्रदेश पर कोई भाषा नहीं थोपना चाहेंगे, लेकिन हाँ, मेरे देश के संविधान ने मुझे 22 भारतीय भाषाएं दी हैं। मेरी तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, असमिया, ये 22 भारतीय भाषाएं हैं मेरी। इनमें अपनी खुशबू है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा संस्कार है, हमारी परंपराएं हैं उसमें। उन 22 भारतीय भाषाओं को कैसे मरने देंगे आप? आखिर उन क्षेत्र की भाषाओं को जो वहां की है वो जिंदा रखेंगे। और दूसरी बात कि आज जो मातृभाषा में अपनी तकनीकी शिक्षा से लेकर कर विज्ञान और ज्ञान में शिखर का प्राप्त कर रहे हैं, क्या ये जो जापान है वो अपनी मातृभाषा में अध्ययन कराता है उच्च शिक्षा तक, क्या वो उसने प्रगति नहीं की? क्या ये फ्रांस जो अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा, स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक करता है, उसने प्रगति नहीं की? ये इजराइल जो हमारे बाद आजाद हुआ, जो हमसे बिल्कुल तहस नहस हो गया था, खत्म हो गई थी, जिसकी भाषा तो सदियों में कैसी स्थिति में आ गई थी, उस इजराइल ने आज अपनी मातृभाषा में दुनिया के शिखर को चूमा। ये जर्मनी अपनी मातृभाषा में करता है, ये अमेरिका अपनी मातृभाषा में करता है, तो क्या वो पीछे? भाषा जो अंग्रेजी वो ज्ञान नहीं है, वो भाषा है, और भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। और इसलिए सारे शीर्ष के 20 देशों का जब मैं विश्लेषण करता हूं, तो जिन्होंने अपनी मातृभाषा में अपना अध्ययन करवाया है वो शिखर पर पहुंच गए। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या परेशानी है? क्यों परेशान हो रहे हैं आप? भारत को सुनकर के क्यों परेशान होते हैं आप? भारत की धरती पर हमको भारत, वो भारत जो विश्व गुरु भारत है, वो तैयार करना है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, और इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये चुनौती जो हमारे सामने है, मैदान पूरा खाली है, पूरा खाली मैदान है, दुनिया के लोग हमारे ऊपर देख रहे हैं। मुझे भरोसा है कि जो आपका जो ये संस्थान है जिसने 34 स्टार्टअप किए हैं, 5 पेटेंट किए हैं, 100 से ज्यादा नौकरियों का सृजन किया, ये मुझे लगता है जो आपकी संस्था है इसको और सक्षम बनाने की जरूरत है। आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है, और मुझे लगता है कि इस समय शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में, पेटेंट के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। मैं पीछे के समय में कुछ देशों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 10 और 15 साल पीछे में तुलनात्मक अध्ययन कर रहा था, तो 15 साल पहले जहां हम थे बराबर थे, और छलांग मार करके दुनिया के वो देश आज हमको बहुत पीछे छोड़ करके और आगे बढ़ गए वो शोध, अनुसंधान और पेटेंट में। तो मुझे लगता कोई बात नहीं, वो पीछे को बहुत अलापने की जरूरत नहीं, लेकिन जब नींद खुले तभी सवेरा होता है। अब हमको पूरी ताकत के साथ उन जो भी गड्ढे उनको पाटने हैं, हम शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में, पेटेंट के क्षेत्र में रात दिन एक जुनूनी तरीके से करेंगे। और इसीलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस नई शिक्षा नीति के अंदर हम लाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार उसके अध्यक्ष होंगे, और उसमें प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ जो शोध और अनुसंधान का परिवेश बनाएगा। और दूसरी तरफ तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका और तेजी से विकास करने के लिए, उसको शीर्ष पर पहुंचाने के लिए हम लोग तकनीकी एक फोरम बना रहे हैं, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। इन दोनों के माध्यम से हम बहुत तेजी से उस गड्ढे को भी पाटेंगे जो शोध और अनुसंधान और पेटेंट में हम कम रहे हैं। हम स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। इस देश का आपने अभी देखा, आपने जितने काम किए, देश आत्मनिर्भर भारत खड़ा हो गया। भारत जो हमारे अभी युक्ति और युक्ति 2 को मैंने जब शुरू किया, युक्ति पोर्टल पर जो हमारे इस बीच जितने भी संस्थानों ने शोध किए, वो हमने कहा युक्ति पर, आप युक्ति का जब आप विजिट करते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा कोविड के समय में इतना बड़ा अनुसंधान हो गए हिंदुस्तान की धरती पर। और AICTE ने जो युक्ति 2 को किया है, जिसमें हजारों छात्रों के आइडियाज हैं, एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया है, जब कोई भी किसान हो, व्यापारी हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे वो गांव का है, शहर का, किसी क्षेत्र का, वो उसका विजिट कर सकता है
और मेरे जो ये छात्र हैं वो जा करके जो 5 करोड़ छोटी यूनिट्स हैं, यदि हर एक यूनिट में मेरा एक छात्र चला जाएगा तो 5 करोड़ छात्र खड़े हो जाएंगे, और उनमें यदि 5 लोगों को भी रोजगार देने की ताकत होगी तो 5 पंजे 25 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये ताकत हमको यहीं से पैदा करनी है, और मुझे भरोसा है ये ताकत पैदा होगी, ये जुनून के साथ होगी। मेरे छात्र में कमी नहीं है, मेरे अध्यापकों में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा समन्वय की कमी है, उसको हम दूर कर देंगे। जो समन्वय का अभाव रहा है दूर कर देंगे, जो छोटे मोटे गड्ढे हैं उनको पाटेंगे, हम लोग मिलकर के पाटेंगे, मुझे भरोसा है। और इसलिए जो आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आपने डिजिटल क्लासरूम बनाया पीछे के दिनों में, उसकी भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने डिजिटल क्लासरूम बनाया, वो कोविड के समय में बनाया। और मैं अभी देख रहा था कि FTBI का उल्लेख किया था कि जिसके निर्माण का जो शिलान्यास भारत के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने किया, उनकी प्रेरणा भी तो हमारे साथ, उनकी ये जो जिसका शिलान्यास उन्होंने किया, उनकी प्रेरणा 24 घंटा हमारे मन मस्तिष्क में रहेगी। अभी कुछ देर पहले मैं चर्चा कर रहा था, एक दीक्षांत समारोह था हमारा IIT इंदौर का, तो मैं उन छात्रों के साथ बात कर रहा था कलाम साहब की। मैंने उनको कहा कि आप दीक्षा लेकर के जा रहे हैं, मैदान आपका खाली है, अब असली परीक्षा आपकी है। और छात्रों में आपको भी कहना चाहता हूं, वो कलाम जो अखबार बांटने वाला वो छोटा सा बच्चा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा सपना तैर रहा था कि वो अखबार बांटते हुए भी सपना कुछ और देख रहा था। और तमाम थपेड़े खाने के बाद वही अखबार को बांटने वाला बच्चा दुनिया का श्रेष्ठ वैज्ञानिक हो जाता है। वही अखबार को बांटने वाला बच्चा हिंदुस्तान का पहला नागरिक राष्ट्रपति हो जाता है। वही हिंदुस्तान का वही अखबार बेचने वाला बच्चा भारत रत्न होकर के खड़ा हो जाता है। ये है ताकत हमारी, क्या नहीं हो सकता। और इसलिए कलाम को मैंने बहुत निकटता से देखा। जब मेरे उनके साथ संबंध हुए तो मुझे बहुत प्यार करने लगे थे वो। तब मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था, उससे पहले भी जब मैंने 1-2 बार उनसे चल आए तो उन्होंने एक बार अभी राष्ट्रपति भवन में बुला करके मुझे कहा, डॉक्टर निशंक मैंने सुना कि आपकी 83 से बहुत देशभक्ति के गीत रेडियो केंद्रों पर और जगह जगह आते हैं, तो सब एक जगह मिले हैं। मैंने कहा सब जगह एक जगह तो नहीं होंगे। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं कह रहा हूं कि वो एक जगह आ सकते हैं तो करें। और उनको एक वतन तेरे लिए एक संग्रह में ला करके मैंने इकट्ठा किया, और वो 100-125 गीत रहे होंगे। और जब उन्होंने उसका लोकार्पण किया तो मैं उसका उदाहरण आपको भी देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ कि जब देशभक्ति का ज्वार मन के अंदर पैदा रहता है, जब सपने जब मन में उमड़ते रहते हैं और आदमी जमीन पर खड़े होकर के संघर्ष करता रहता है, तो मैंने उस दिन दर्शन किया था उनकी देशभक्ति का, जब उन्होंने लोकार्पण किया था। और उसके बाद मुझे घुमाते हुए कमरे की ओर ले गए। उन्होंने अपने उसमें छोटी सी कविता जो उस किताब में थी पढ़ी होगी उन्होंने, हिंदी कम आती थी लेकिन उसको हिंदी में उन्होंने टाइप करके किया था, और मेरा हाथ पकड़ करके यूं घूमे और वो उसकी गुनगुनाने लगे थे। वो 4-6 पंक्तियां थी, लेकिन देखिए उनके मन में किस चीज ने स्थान बनाया, और क्या अंदर जब पल रहा होता तो लोगों को वही अच्छा लगता है। आपको अपनी ही तरीके के लोग पसंद आते हैं हमेशा, जो आपके मन मस्तिष्क में चलता रहता है। यदि वो कहीं स्पर्श होता है तो उसको लगता है आपको कि ये अपना है। वो कविता थी उनकी जो उस किताब में थी, और जिसको उन्होंने गुनगुनाया कि अभी भी है जंग जारी, अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। अब देखिए, मनुजता होगी धरा पर और संवेदना, तो उन्होंने कहा मुझे अच्छी लगी। लेकिन इसके आगे जब उन्होंने बोला कि किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूं ए वतन, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये जो अंत की पंक्ति कहते कहते और उनके आंखों से अश्रु की धार फूटती हुई मैंने देखी।
उन्होंने 3-4 बार उस पंक्ति को कह रहा हूं ये वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, कह रहा हूं ये वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये था उनके वतन के प्रति समर्पितता कि अंदर से जो प्रेम उमड़ रहा था अपनी धरती के प्रति, अपने भारत के प्रति, अपने देशभक्ति का जो उमड़ घुमड़ रहा था, इसने वो आंसू के रूप में बाहर निकल रहा था। ये है देशभक्ति। उसी देशभक्ति ने उस अब्दुल कलाम को भारत रत्न बना करके भारत का राष्ट्रपति बनाए। मैं कहना ये चाहता हूं, जब मन में उत्साह और उमंग रहती है, देश के लिए समर्पितता रहती है, तो रास्ता खुद ब खुद बनता है। और इसलिए मैं छात्रों आपको शुभकामना देना चाहता हूं। ये जो कलाम साहब ने जो शिलान्यास किया है, उस भवन का रोज दर्शन करो, याद करो कलाम को। मुझे भरोसा है कि आप उनके सपनों को पूरा करेंगे। आप में ऊर्जा आएगी जब हम किसी का स्मरण करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी आदमी से बात करते हैं तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। जब किसी चित्र को देखते हैं तो बहुत सुंदर, अंदर तक खुशी मिलती है। कारण क्या है? उससे आपका जुड़ाव होता है, वो आपको अंदर की भावनाओं को छूता है, स्पर्श करता है, उबारता है, और धीरे धीरे करके जो अंदर सृजित होता है वही बाहर निकल करके आता है। मुझे भरोसा है कि कलाम को अब रोज, मैं उनके जीवन के उस दिन मैंने ये तय किया था कि जब भी मुझे वक्त लगेगा मैं कलाम की इस पर जीवन दर्शन पर जरूर लिखूंगा। उनके जीते जी तो नहीं लिख पाया मैं, लेकिन उसके बाद मैंने उनके सपने जो सोने दे, ये उन्होंने बार बार कहा था, और उस पर इसी हेडिंग के साथ मैंने एक पुस्तक निकाली थी उनके जीवन दर्शन पर, सपने जो सोने न दें। और लोगों में, युवाओं में बहुत लोकप्रिय हुई। वो सपने तो वही होना चाहिए जो सपने सुला दें आपको। सपने क्या हैं? सपने तो वो हैं जो एक सेकंड भी आपको चैन से बैठना न दें, तब तक बैठना नहीं दें जब तक उस सपने को आप क्रियान्वित नहीं कर देते धरती पर। ये है सपने। ये सपने बुनना भी जरूरी है, लेकिन कोरे सपने नहीं। यदि सपने बुने हम और काम कुछ न करें तो उसको बोलते हैं सोचता तो बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा आदमी है कि सपने तो बड़े बड़े देखता, करता कुछ नहीं है। मुझे भरोसा है जब हम सपने देखते हैं तो उन सपनों को साकार करने के लिए हम अपना खून और पसीना ये कर देते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, आपने अभी सामाजिक दायित्वों के तहत भी कई गांवों को लिया, ये भी मुझे खुशी है। और आपने वहाँ प्लांटेशन किया, डिजिटल साक्षरता का गाँव में किया। मैं जब उड़ीसा उधर आऊँगा मैं तो आपके इन गाँव में ज़रूर जाना चाहता हूँ। मैं जो आपके 5 गांव हैं मैं जरूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस संस्था का दर्शन उन गांव में देखने को मिलेगा मुझे कि आखिर वो गांव हमने किस तरीके से खड़े किए। हमारी छांव में वो 5 गांव कितना परिवर्तन हुआ, ये मैं जरूर, निदेशक महोदय, मैं जरूर जाऊंगा। और मुझे भरोसा है जैसे आप स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, कृषि संबंधी गतिविधियां कर रहे हैं, इनोवेटिव और गतिविधियों में उनको और आगे ला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं आप। मुझे भरोसा है कि वो 5 गांव निश्चित उड़ीसा के लिए एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित होंगे। मुझे भरोसा है वो आप कर रहे होंगे, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट भी एक बार ये सोचेगी यदि भाई मॉडल बनाना है, प्लान बनाना है, तो पहले उन गाँव में जाओ। मेरे राउर किला जो है, जो ये NIT है मेरा, मैं इस NIT के लोगों को बुलाओ, पूछो उनसे क्या हम प्लान बना सकते हैं गाँव के विकास का, इसकी जरूरत है मुझे। और वही आपसे होकर के गुजरता है। मुझे भरोसा है आपने, मैं देख रहा था कि बहुत सारी चीजों को किया है, कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे बात तो बहुत करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब समय समय पर हम बात करेंगे। मुझे भरोसा आप पर भरोसा है कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं निश्चित रूप में आगे बढ़ाएंगे। आप इस राष्ट्र निर्माण की दिशा में आधारशिला बनेंगे। और जिस तरीके से ये नई शिक्षा नीति आई है, नीति बहुत अच्छी होती है, उसको पूरे देश ने स्वीकार किया। दुनिया में भी कई देशों ने अभी ये कह दिया हम NEP को अपने देश में लागू करना चाहते हैं। तो ये उसकी खुशबू थी कि वो NEP को लेकर के पूरी दुनिया के लोग बहुत उत्सुक हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई, मैं बहुत लंबे समय से, पिछले 30-40 सालों से मैं उत्तर प्रदेश में भी 2-2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, फिर मैं बहुत सारी बार मंत्री, फिर मैं मुख्यमंत्री भी रहा। तो लेकिन मैं ये जानता हूं कि योजना बनाने के बाद असली काम होता है उसको उसके मुकाम तक पहुंचाने का, और वो काम होता है योजना और क्रियान्वयन। इन दो के जो बीच का हिस्सा है
वो लीडरशिप होती है, और वो लीडरशिप आपके हाथों में है। आप किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, इसी की जरूरत है। और मुझे भरोसा है आपकी लीडरशिप पर कि आप जो ये नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें सबका साथ भी है, सबका विकास भी है, सबका विश्वास भी है, और हमने सबका विश्वास भी लिया। हमने आपको तो मालूम है कि सब लोगों को का बताओ क्या उनका सुझाव है। 2.5 लाख सुझाव आए थे जब पब्लिक डोमेन में मैंने इस नीति को डाला था, और एक एक सुझाव पर विश्लेषण किया था। 3 हमने सचिवालय बनाए थे। एक बेंगलोर में सचिवालय बनाया था, जिसका स्वयं ही जो है कस्तूरी रंगन जी स्वयं उसको देख रहे थे, और 2 सचिवालय यहाँ बनाए थे। एक स्कूली शिक्षा का अलग, तकनीकी शिक्षा का अलग, उच्च शिक्षा का अलग, और हर सुझाव का विश्लेषण करने के बाद, और गांव से लेकर के ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक, गांव से लेकर संसद तक, अध्यापक से लेकर के शिक्षक से लेकर शिक्षाविदों तक, वैज्ञानिकों से लेकर के और विशेषज्ञों तक, कोई नहीं छोड़ा। मैंने सबसे परामर्श किया। इस देश के 1000 कुलपतियों से मैंने बात की, 45,000 डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और अध्यापकों से बात की, मैंने 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से सीधा संवाद किया। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श रहा होगा। उसके बाद ये जो नई शिक्षा नीति आई है, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। कोई भी कुछ भी ले सकता है, हर विषय ले सकता है। कोई विज्ञान के साथ साहित्य पढ़ सकता है, कोई तकनीकी के साथ संगीत ले सकता है, और यदि वो बीच में ही छोड़ करके जाना चाहता है, यदि वो 2 साल 4 साल की डिग्री है, 2 ही साल में उसकी परिस्थिति है, छोड़ना चाहता है, तो आज तक तो ये था कि वो 2 साल उसके बर्बाद हो जाते थे, अब नहीं होंगे। यदि वो 1 साल में परिस्थिति छोड़ के जाना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में जाता है तो उसको डिप्लोमा मिला, 3 साल में छोड़ता है तो उसको डिग्री भी मिलेगी। लेकिन यदि उस बीच में ही 2 साल में फिर लौट करके आना चाहता है और अपने भविष्य को संवारना चाहता है, तो वो वहीं से ज्वाइन कर सकता है। ऐसा जो बैंक, डिजिटल बैंक बनाया है हम लोगों ने, एक क्रेडिट बैंक बनाया है, उस क्रेडिट बैंक को जहां पर वो छोड़ करके गया था वहीं से वो शुरू कर सकता है, उसके भविष्य को और बढ़ाया जा सकता है। ये है इस नई शिक्षा नीति का। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। जैसे मैंने कहा, विश्व के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों को इस देश में आने के लिए हमने आमंत्रित किया है, और हमारे भी विश्वविद्यालय, हमारी भी ये संस्थाएं बाहर जाएंगी। अभी आपने देखा कि आसियान देशों के 1000 से भी अधिक छात्र हमारे IITs में शोध के लिए आए हैं, और दुनिया में बहुत तेजी से हिंदुस्तान अब महसूस हो रहा है दुनिया के लोगों के, हाँ हिंदुस्तान की धरती पर बहुत परिवर्तन हो रहा है। हिंदुस्तान के जो अध्यापक हैं सामान्य नहीं है, योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। अब देश को लगता है हाँ ताकत है उसके पास, और मुझे भरोसा है जब विषम परिस्थितियों में मेरा देश खड़ा हो सकता है। और आज दुनिया के लोग अब हमारे देश की ओर देख रहे हैं। हाँ होंगी, जो कमियां होंगी उसको तेजी से पाटेंगे हम। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति आई है, नए कैलिबर के साथ आई, नए परिवर्तन के साथ आई है, इसको हम किस तरीके से नीचे तक लागू कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें आत्मविश्वास, प्रमाण, परिणाम, ये परिणाम आधारित शिक्षा कैसे हो सकती है मेरी हर चीज की, उसकी जरूरत है। मैं एक बार ऐसे अवसर पर, जबकि हम स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये स्वर्ण जयंती भवन 21वीं सदी के मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम भारत की आधारशिला बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for the insightful thoughts. And we as an institute will promise you that our whole community will work hard create to a congenial and productive environment so that we can proactively contribute in all important spheres of our society. And programs initiated by Government of India in coordination with Ministry of Education under the able leadership of our beloved Prime Minister and yourself, sir, like new education policy with slogan to stay in India, study in India, Prime Minister's Research Fund, impacting research innovation and technology scheme that is also called as Imprint, higher education funding agency, so that whatever the fund we have received, that we will be utilized at the optimum level as far as research and teaching environment in the institute is concerned. Atal ranking of institution on innovation achievement
digital education, Smart India and Think India, and as well as Mano Darpan, to name few. इस संदर्भ में आपके कविता संग्रह कोई मुश्किल नहीं कि कुछ पंक्तियां पूरी तरह सार्थक हो रही हैं। जग में धूम मचा दो अब अपने भारत के नाम की, विश्व गुरु कहलाता भारत अब भी पूजता होता है। नफरत की दीवार तोड़कर शांति बीज को बोता है, भारत की रक्षा में युवा फिर चिंता किस काम की, जग में धूम मचा दो अब अपने भारत के नाम की। Thank you very much, sir, for your encouraging words, and thank you very much once again for joining with us. Now I request our director, sir, to felicitate our Honorable Minister of Education by presenting a token of love from NIT Rourkela family. Since you are virtually joining with us, on your permission, I will request Registrar, sir, to take this memento on your behalf. The memento, sir, is made through popular art from the city of Cuttack, which is known as filigree art, and carries depictions of Lord Jagannath with his siblings Balabhadra and Subhadra. Thank you, Director, sir, for felicitating our chief guest. And now I request Registrar, sir, Professor P.K. Das, to deliver vote of thanks speech. Registrar, sir. I am greatly honored and feel privileged to put vote of thanks on the occasion of inaugural function of Golden Jewel Building of the Institute on behalf of NIT fraternity and on my own behalf. Good evening to all of you present here in the function, all the NIT fraternity and stakeholders of the Institute, those who are watching this live program through YouTube link. At the outset, I must put the heartfelt gratitude to our Honorable Union Minister of Education, Sri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, for gracing this memorable event and inspiring us to march ahead in our growth path in nation building by bringing the technological solution for uplifting the lives of our surroundings with a motto of self-reliant philosophy. I must mention NITR is grateful to Sri Jual Oram Sir, Honorable Member of Parliament of Sundargarh constituency of Odisha, for the kind word in his video message where he has appreciated our effort on activities in Unnat Bharat Abhijan. Sir, NITR is obliged always to you. I must mention our deep sense of appreciation to Sri Madan Mohan Sir, Additional Director General, Department of Higher Education, Ministry of Education, for his constant support and guidance, being one of the members of BOG. Thank you, sir, for gracing the occasion. The able guidance of our director, Professor Animesh Vishwas, has materialized to complete this particular gigantic structure of Golden Jewel Building. The structure is designed as a ship by the architecture with a concept. He is the real captain of this ship to sail through all adversities on our way of growth. At this moment, we should also not forget the long-term vision attached with the structure by our former director, Professor Sunil Kumar Sadangi, sir. Thank you, sir, from our core of our heart, if you are watching this program. Your visionary outlook has changed the both physical and research landscape of our institute. NIT Rourkela is grateful to Padma Shri N.R. Mohanty, sir, ex-chairman Hall, BOG member of Institute of this, for his constant support to all futuristic policy beneficial for the Institute.
I would also like to take this opportunity to thank Sapurji Palamji, the construction agency involved for the construction of this particular gigantic project, and the Inform Architectural Farming Bangalore, which designed this building with a corporate touch. Further, I appreciate the effort of our in-house engineer from the estate management department for their contribution to have this building in place today. I also extend my thanks to NIC official staff at Delhi office of Honorable Minister and our Angtel Group, head HOD's Computer Center and his team for their enormous cooperation in the organization of the function in providing and synchronizing the IT infrastructure. An event like this cannot happen which requires planning, and hence we have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of the Institute who have rendered their help silently. The print and electronic media has played a big role in bringing the event in public in a great way. I must thank them to help this institute for its perception building. It needs a big thank from my core of the heart. I cannot thank everyone for their involvement and their willingness to take as the completion of the task beyond their comfort zone. I thank all those silent workers for their timely support to make this function happen. I thank to all the BOG members, deans, students, staff, and faculty members, and the event management group, and the lawn and garden teams for their support to make this function more memorable. Jai Hind. Thank you very much, sir, for the honors. And now I request everyone to stand for the national anthem. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय I once again thank Honorable Chief Guest of today's inaugural function, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Shri Madan Mohan ji, and every one of you for sparing your valuable time for this event and your continuous support, love, and affection. And we hope it will continue later on as well. Sir, I seek your permission to officially close this event. Thank you very much, sir. And now we are officially closing this event. Good night to all of you from NIT Rourkela, and goodbye. Thank you very much. You know all skills and techniques, adorning the